Any problem about these topics which we have discussed in last class? No, sir. No, चलिए, sir. तो today we will be discussing serializability. देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे serializability? Yes, जी sir. सर. Okay. As we know, transactions can be executed in two ways: serial execution of the transactions and concurrent execution of the transactions. Serial execution of the transaction means transactions will be executed serially. This means, first of all, first transaction will be executed, and then after the completion of all the operations of the first transaction, second transaction will be executed. Then after the completion of the second transaction, next transaction will be started. It means at a time only one transaction will be executed. This is known as serial execution of the transaction. And if we are working with serial execution of the transaction, they will never place the database in inconsistent state. In other words, we can say that if transactions are being executed serially, database will always be in consistent state. But whenever transactions are being executed concurrently, then they can place the database in inconsistent state. Therefore, DBMS must ensure that database must not be in inconsistent state after the execution of concurrent transactions. Therefore, but whenever we are working with any organization database, there will be a large number of users, and if there are large number of users, then we have to work with concurrent execution of transactions, because in case of serial execution of transactions, performance will be degraded. Therefore, we have to follow the concept of concurrent execution of transactions. But concurrent execution of transactions may place the database in inconsistent state. Therefore, if transactions are being executed concurrently, then this is the responsibility of the DBMS that it must ensure that database must be consistent after the concurrent execution of the transaction. Therefore, after the execution of concurrent transactions, DBMS check a test that these concurrent transaction has been placed the database in inconsistent state or database is in consistent state. This test is known as serializability test. Very important topic, एग्जाम में जरूर आता है. तो व्हाट डू यू मीन बाय serializability test? A non serial schedule. What do you mean by non serial schedule? Concurrent schedule. कंकरेंट शेड्यूल. दो ही तरह के शेड्यूल होते हैं, सीरियल और कंकरेंट. तो अगर सीरियल Concurrent. नहीं है, नॉन सीरियल का मतलब सीरियल नहीं है, तो कौन सा शेड्यूल हुआ? कंकरेंट शेड्यूल हुआ. Concurrent schedule. A non-serial schedule wherein the operations from a set of concurrent transactions are interleaved is considered to be serializable if the execution of the operations in the schedule leaves the database in the same state as some serial execution of the transactions. इन्होंने कहा है अगर ट्रांजैक्शंस का कंकरेंट शेड्यूल डेटाबेस को उसी स्टेट में छोड़ता है जिस स्टेट में उन ट्रांजैक्शंस का सीरियल शेड्यूल डेटाबेस को छोड़ता है, तो वो शेड्यूल क्या कहलाएगा? सीरियलाइजेबल. एंड इफ आवर शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल, इट मींस डेटाबेस विल ऑलवेज बी कंसिस्टेंट. बताइए ये बात समझ आई कि नहीं? जी सर. हमने सपोज वी हैव टू ट्रांजैक्शंस, हमने उन दोनों ट्रांजैक्शंस को सीरियली एग्जीक्यूट कराया. सीरियली एग्जीक्यूट कराने के बाद डेटाबेस जिस स्टेट में गया, जिसको हम कहते हैं AFIM, आफ्टर इमेज, डेटाबेस की जो आफ्टर इमेज आई, सेम वही इमेज डेटाबेस की आती है जब हम उन ट्रांजैक्शंस को कंकरेंटली एग्जीक्यूट कराते हैं. तो हमारा वो कंकरेंट शेड्यूल क्या कहलाएगा? सीरियलाइजेबल कहलाएगा. और अगर हमारा कंकरेंट शेड्यूल सीरियलाइजेबल है तो इसका मतलब है हमारा डेटाबेस हमेशा कौन सी स्टेट में रहेगा? कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा. सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट क्या हो जाता है? हमारा सक्सेस हो जाता है. बताइए ये बात समझ आई कि नहीं? क्लियर? कैसे कराएंगे ये टेस्ट? अभी सीखेंगे हम. ये सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट हम कैसे करेंगे इसको अभी सीखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी नोइंग व्हाट डू यू मीन बाय सीरियलाइजेबल टेस्ट. क्लियर स्टूडेंट्स? जी सर. दोबारा से समझ लेते हैं. सीरियलाइजेबल टेस्ट में
हम अपने कंकरेंट शेड्यूल को चेक करते हैं वो सीरियलाइजेबल है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग, वो भी हम आगे सीखेंगे। अब अगर हमारा कंकरेंट शेड्यूल सीरियलाइजेबल है तो इसका मतलब है हमारा डेटाबेस हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा। अगर हमारा कंकरेंट शेड्यूल सीरियलाइजेबल नहीं है तो इसका मतलब है हमारा डेटाबेस इन कंकरेंट ट्रांजैक्शंस के एग्जीक्यूशन के बाद इनकंसिस्टेंट हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. नाउ वी मस्ट बी नोइंग हमें कैसे पता चलेगा हमारा शेड्यूल सीरियल कंकरेंट शेड्यूल सीरियलाइजेबल है या नहीं है। ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो कंकरेंट शेड्यूल है वो अगर डेटाबेस को उसी स्टेट में लीव करता है, उसी स्टेट में छोड़ता है जिस स्टेट में उन ट्रांजैक्शंस का सीरियल शेड्यूल छोड़ेगा, तो इसका मतलब है हमारा कंकरेंट शेड्यूल सीरियलाइजेबल है, अदरवाइज हमारा कंकरेंट शेड्यूल सीरियलाइजेबल नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? जी सर। चलिए, देयर आर टू टाइप ऑफ सीरियलाइजेबिलिटी। अब सीरियलाइजेबिलिटी कैसे कराते हैं, ये दो तरह की होती है। फर्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एंड सेकंड इज व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी मींस if a schedule S can be transformed into a schedule S dash by a series of swaps of non-conflicting transactions, we say that S and S dash are conflict equivalent. पहले समझ लीजिएगा, फिर इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। As we know, there are two type of execution of the transactions: serial schedule and concurrent schedule. Clear, students? Yes, sir. Which schedule may place the database in inconsistent state? Concurrent. Concurrent. Or serial schedule will never place the database in inconsistent state. Clear, students? Yes, sir. तो हमारे पास दो शेड्यूल होते हैं, एक सीरियल शेड्यूल होता है, एक कंकरेंट शेड्यूल होता है। सीरियल शेड्यूल हमारे डेटाबेस को कभी भी इनकंसिस्टेंट स्टेट में नहीं डालेगा, लेकिन कंकरेंट शेड्यूल हमारे डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट स्टेट में डाल सकता है। इसलिए एक मेथड तो यह है हम ट्रांजैक्शंस को सीरियली ही एग्जीक्यूट कराएं, लेकिन अगर हम ट्रांजैक्शंस को सीरियल शेड्यूल यूज करके एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है। इसलिए हम ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कराने के लिए यूज करते हैं कंकरेंट शेड्यूल। But as we know, concurrent schedule may place the database in inconsistent state. तो हमें कैसे पता लगेगा कि concurrent schedule ने हमारे database को inconsistent state में डाला है या नहीं डाला है? उसके लिए होता है serializability test. हम concurrent execution का serializability test करा लें। अगर उस concurrent schedule का serializability test successful हो जाता है, सक्सेस होता है, तो इसका मतलब है वो concurrent schedule हमारे database को inconsistent state में नहीं डालेगा। सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट कराने के लिए दो तरह की सीरियलाइजेबिलिटी होती है। पहली होती है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एंड अनदर इज व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी और व्यू सीरियलाइजेबिलिटी? जो हमारे पास कंकरेंट शेड्यूल है, अगर हम उस कंकरेंट शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा वो शेड्यूल सीरियलाइजेबल है, हमारा वो शेड्यूल सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट को पास करता है। लेकिन अगर हम अपने शेड्यूल कंकरेंट शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है हमारा वो कंकरेंट शेड्यूल सीरियलाइजेबल नहीं है। इट मींस दैट कंकरेंट शेड्यूल मे प्लेस द डेटाबेस इन इनकंसिस्टेंट स्टेट। बताइए ये बात समझ आई कि नहीं? Yes, sir. क्लियर? तो सीरियलाइजेबिलिटी, अभी कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी या व्यू सीरियलाइजेबिलिटी को छोड़ दीजिएगा, अभी सबसे पहले ये समझिएगा कि सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट कैसे कराते हैं। सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट कराने के लिए वी कन्वर्ट आवर कंकरेंट शेड्यूल इनटू सीरियल शेड्यूल। इफ वी आर एबल टू कन्वर्ट आवर कंकरेंट शेड्यूल इनटू सीरियल शेड्यूल, it means serializable text is successful, it means concurrent schedule is serializable, and if concurrent schedule is serializable, if serializability test is successful, it means that concurrent schedule will not place the database in inconsistent state. Clear, students? Yes, sir. वो कन्वर्जन करने के लिए कंकरेंट शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट करने के लिए दो तरह की सीरियलाइजेबिलिटी होती है, या हम कहें कि हम सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट दो तरह से करा सकते हैं। फर्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी,
Second is view serializability. What do you mean by conflict serializability? कोई भी serializability हो, चाहे वो conflict serializability हो, चाहे वो view serializability हो, हमें क्या करना है, अपने concurrent schedule को serial schedule में convert करना है. अब conflict serializability में concurrent schedule को serial schedule में कैसे convert करते हैं? According to conflict serializability, we will check non-conflicting transactions in our schedule. हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कंकरेंट शेड्यूल है, उस कंकरेंट शेड्यूल में हम नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रांजैक्शंस को देखेंगे. अगर हमारे पास दो अलग अलग ट्रांजैक्शंस की दो कंटिन्यूअस नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, दो कंटिन्यूअस नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हैं, तो हम उन्हें स्वैप कर सकते हैं. ऐसे स्वैप करते 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 हम एक नया शेड्यूल बनाएंगे, और अगर वो नया शेड्यूल सीरियल शेड्यूल के इक्विवेलेंट है तो इट मींस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी. और अगर हमारा कंकरेंट शेड्यूल सीरियलाइजेबल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल बन जाता है, तो इसका मतलब है वो सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट को पास करता है. इसका मतलब है दिस कंकरेंट शेड्यूल विल नॉट प्लेस द डेटाबेस इन इनकंसिस्टेंट स्टेट. बताइए स्टूडेंट्स, ये बात समझ आई कि नहीं? हेलो, यस सर. समझ आ गया मेथड? हेलो, Yes, sir. चलिए दोबारा से मैं समझाता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसलिए दोबारा से समझ लीजिए. हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी, हम उन ट्रांजैक्शंस का कंकरेंट शेड्यूल बनाएंगे. उस शेड्यूल को नाम दे देंगे हम शेड्यूल एस. फिर उस कंकरेंट शेड्यूल को हम सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट करेंगे. उस सीरियल शेड्यूल को हम नाम देंगे एस डैश. अब अगर हम कंकरेंट शेड्यूल एस को सीरियल शेड्यूल एस डैश में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो हमारा सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट पास हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है. और अगर सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो वो कंकरेंट शेड्यूल हमारे डेटाबेस को हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट में प्लेस करेगा, इनकंसिस्टेंट स्टेट में प्लेस नहीं करेगा. क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आ गया? Yes, sir. यस सर. अब उस कंकरेंट शेड्यूल एस को सीरियलाइजेबल शेड्यूल सीरियल शेड्यूल एस डैश में कन्वर्ट करने के दो मेथड होते हैं. पहला मेथड होता है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, दूसरा मेथड होता है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी? कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में हम अपने कंकरेंट शेड्यूल में नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रांजैक्शंस देखते हैं. अभी बताऊंगा मैं आपको कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं. हम अपने शेड्यूल में नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रांजैक्शंस देखते हैं. अगर हमारे शेड्यूल में कोई भी नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रांजैक्शंस हैं तो हम उन इंस्ट्रक्शंस हैं, ट्रांजैक्शंस के अंदर नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हैं, तो हम उन ऑपरेशंस को स्वैप कर सकते हैं. और अगर उन ऑपरेशंस को स्वैप करके हमें सीरियल शेड्यूल मिल जाता है, तो इसका मतलब है शेड्यूल इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल. And if schedule is conflict serializable, it means it pass conflict serializability test. Or if it pass serializability test, then this concurrent schedule will not place the database in inconsistent state. Clear student? Methodology is clear? Yes, sir. यस सर. चलिए अब देखते हैं ये क्या कह रहे हैं. The concept of conflict equivalency leads to the concept of conflict serializability. A schedule S is conflict serializable if it is conflict equivalent to a serial schedule. जो अभी हमने आपको बताया था, आपके पास जो concurrent schedule है, अगर आप उसे serial schedule में convert कर पाते हैं by swapping non-conflicting transaction, then that concurrent schedule is known as conflict serializable. कैसे? Therefore, to transform a schedule S का मतलब है concurrent schedule, into S dash का मतलब है serial schedule, we must be knowing conflicting and non-conflicting instructions. concurrent schedule S को serial schedule S dash में convert करने के लिए हमें non-conflicting instructions को swap करना है. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए what are conflicting instructions and what are non-conflicting instructions. Let us consider a schedule S in which there are two consecutive instructions
II and IJ of transactions TI and TJ respectively. हमने कहा suppose we have two transactions TI, T1 and T2. क्लियर स्टूडेंट्स? हमारे पास दो ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन है T1, एक ट्रांजेक्शन है T2. ट्रांजेक्शन T1 is to calculate total balance of account A and account B. Transaction T2 is to transfer ₹100 from A's account to B's account. अब इन दोनों ट्रांजेक्शन T1 और T2 को हम दो तरीके से एग्जीक्यूट करा सकते हैं, सीरियल शेड्यूल से और कंकरेंट शेड्यूल से. अगर सीरियल शेड्यूल से एग्जीक्यूट कराएंगे तो पहले T1 एग्जीक्यूट होगी, जब T1 कंप्लीट हो जाएगी तो T2 एग्जीक्यूट होगी, या पहले T2 एग्जीक्यूट होगी, जब T2 कंप्लीट हो जाएगी तो T1 एग्जीक्यूट होगी. किसी की भी इंस्ट्रक्शंस इंटरलीव्ड नहीं होंगी. इंटरलीव्ड का मतलब होता है पहले कुछ ट्रांजैक्शन इंस्ट्रक्शंस T1 की एग्जीक्यूट हुई, फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस T2 की एग्जीक्यूट हुई, फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस T1 की एग्जीक्यूट हुई, फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस T2 की एग्जीक्यूट हुई. अगर ऐसे ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं तो इसको बोलते हैं कंकरेंट एग्जीक्यूशन, और ट्रांजैक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड इन इंटरलीव्ड मैनर. क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर हम सीरियली एग्जीक्यूट कराते हैं तो डेटाबेस हमारा कंसिस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर हम इन्हें कंकरेंटली एग्जीक्यूट कराते हैं तो कंकरेंटली एग्जीक्यूट कराने का मतलब है पहले T1 की कुछ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी, फिर T2 की कुछ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी, फिर T1 की कुछ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी, फिर T2 की कुछ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होंगी. ये कहलाएगा कंकरेंट एग्जीक्यूशन. अब मान लीजिए कंकरेंट एग्जीक्यूशन हो रहा है और एक इंस्ट्रक्शन है II जो T1 की है और एक इंस्ट्रक्शन है IJ जो T2 की है. अब हमें पता करना है II और IJ कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं या नॉन कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं. अगर II और IJ कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं तो हम उन दोनों को स्वैप नहीं कर सकते हैं. अगर II और IJ नॉन कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं तो हम उन्हें स्वैप कर सकते हैं. कैसे पता चलेगा? इफ II and IJ रेफर टू डिफरेंट डेटा आइटम्स. अगर II जो है वो किसी और डेटा आइटम पर काम कर रही है और IJ जो है वो किसी और डेटा आइटम पर काम कर रही है, दोनों अलग अलग डेटा आइटम पर काम कर रही हैं, तो इसका मतलब वो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, वो कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं है, इसलिए हम उन दोनों को स्वैप कर सकते हैं. देखिए कहा इन्होंने, इफ II and IJ refer to different data items then we can swap II and IJ without affecting the result of any instruction in the schedule because they are non conflicting instructions. बताइए स्टूडेंट, यहां तक समझ आया कि नहीं? यस सर. तो सबसे पहले हम देखेंगे वो दो इंस्ट्रक्शंस किस डेटा आइटम पर काम कर रही हैं. अगर दोनों इंस्ट्रक्शंस अलग अलग डेटा आइटम पर काम कर रही हैं तो वो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है और हम उन्हें इंटरचेंज करा सकते हैं, स्वैप करा सकते हैं. अब सेकंड कंडीशन आती है अगर दोनों इंस्ट्रक्शंस सेम डेटा आइटम पर काम कर रही हैं. अगर दोनों इंस्ट्रक्शंस सेम डेटा आइटम पर काम कर रही हैं और दोनों रीड इंस्ट्रक्शंस हैं तो हम उन्हें स्वैप कर सकते हैं, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. चाहे T1 एक ही वैल्यू रीड करे, चाहे T2 पहले एक ही वैल्यू रीड करे, दोनों को एक ही वैल्यू कितनी मिलेगी? बताइए स्टूडेंट्स. सेम. कितनी? हमने एग्जांपल डिस्कस किया था लास्ट क्लास में. 100. 1000 सर 1000. यस सर. 1000. अब चाहे T1 ने पहले A को रीड किया उसको भी वैल्यू 1000 मिलेगी, चाहे T2 ने पहले A को रीड किया उसको भी वैल्यू 1000 मिलेगी. तो हम रीड इंस्ट्रक्शन ऑफ T1 एंड रीड इंस्ट्रक्शन ऑफ T2 को क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है? नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं. बताइए स्टूडेंट, समझ आया कि नहीं? यस सर. अब थर्ड कंडीशन आती है अगर दोनों ट्रांजैक्शन सेम डेटा आइटम पे काम कर रही हैं और एक रीड है और एक राइट है. मान लीजिए T1 एक ही वैल्यू रीड करती है और T2 एक ही वैल्यू राइट करती है, तो क्या बताइए हम इन दोनों इंस्ट्रक्शंस को स्वैप कर सकते हैं? नो सर. नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस है. क्यों नहीं कर सकते हैं? देखते हैं एग्जांपल. अगर मान लीजिए T1 ने एक ही वैल्यू पहले रीड की तो T1 को कितना मिलेगा? 1000. 1000. यस सर. और T2 राइट करेगा उसको कितना? 1000 माइनस 100 यानी कि 900. क्लियर स्टूडेंट्स? अब अगर मैंने इनको स्वैप करा दिया, अगर हमने इनको स्वैप करा दिया तो पहले T2 राइट करेगा. अगर T2 राइट करेगा तो एक की वैल्यू 900 हो जाएगी और फिर T1 रीड करेगा तो अब T1 को एक की वैल्यू कितनी मिलेगी? 900. 900. आप देख रहे हैं वैल्यू चेंज हो जा रही है.
इसका मतलब है ये दोनों इंस्ट्रक्शंस कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस हैं और हम इन्हें स्वैप नहीं कर सकते हैं, हम इन्हें इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. नेक्स्ट आता है दोनों ट्रांजेक्शन सेम डेटा आइटम पे वर्क कर रही हैं और दोनों राइट ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं। तो बताइए ये दोनों इंस्ट्रक्शंस कॉन्फ्लिक्टिंग है कि नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है? Sir, conflicting है. कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो सीधा सीधा सा फॉर्मूला है आपको ये याद रखने के लिए कि कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस कॉन्फ्लिक्टिंग होती हैं, कौन कौन सी नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग होती हैं। फॉर्मूला नंबर 1, अगर दोनों ट्रांजैक्शंस डिफरेंट डेटा आइटम पर वर्क करती हैं तो इंस्ट्रक्शंस चाहे रीड हो चाहे राइट हो, दे विल ऑलवेज बी नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। सेकंड कंडीशन आती है अगर दोनों ट्रांजैक्शन सेम डेटा आइटम पे वर्क कर रही हैं और दोनों ट्रांजैक्शंस रीड ऑपरेशन परफॉर्म करती हैं, देन दे आर नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस। लेकिन अगर दोनों ट्रांजैक्शन सेम डेटा आइटम पे वर्क करती हैं और कोई भी एक इंस्ट्रक्शन राइट ऑपरेशन परफॉर्म करती है तो इसका मतलब है दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस एंड दे कैन नॉट बी स्वैप्ड, दे कैन नॉट बी इंटरचेंज्ड। बताइए समझ आया कि नहीं? यस सर, आ गया। अब दोबारा से देख लेते Yes, हैं। यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा है, if II and IJ refers to different data items then they are non-conflicting instructions and we can swap II and IJ without affecting the result of any instruction in the schedule. However, if II and IJ refer to same data item Q, then the order of the swap 2 steps may matter. Since we are dealing with only read and write instructions, there are 4 cases that we need to consider. Case 1, II equal to read, IJ equal to read. दोनों इंस्ट्रक्शंस कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं? रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं, तो दोनों नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग होंगी और हम उन्हें स्वैप कर सकते हैं। Then the order of AI and II and IJ does not matter because the same value of Q is read by TI and TJ regardless of the order. Therefore, they are non-conflicting. Therefore, they can be interchanged. If II equal to read Q, IJ equal to write Q, एक read है एक write है, तो दोनों non conflicting नहीं होंगी, conflicting होंगी। If II comes before IJ, then TI does not read the right value of Q that is written by TJ. If IJ comes before II, then TI read the value of Q that is written by TJ. Therefore, order matters. Therefore, they are conflicting. Therefore, they cannot be interchanged. II इक्वल टू राइट, IJ इक्वल टू रीड, यानी कि एक राइट है एक रीड है, तो दोनों का ऑर्डर मैटर करेगा। इसका मतलब है हम इनको स्वैप नहीं कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग कहलाएंगी। दोनों ही राइट हैं तब भी दोनों का ऑर्डर मैटर करेगा, इसलिए दोनों ही हमारी नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होंगी, कॉन्फ्लिक्टिंग कहलाएंगी, हम उनको इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने कंक्लूजन निकाला, thus only in the case where both II and IJ are read instructions does the relative order of their execution not matter. तो कंक्लूजन क्या निकल के आया? कंक्लूजन निकल के आया अगर दोनों ट्रांजैक्शन डिफरेंट डेटा आइटम्स पे वर्क कर रही हैं तो वो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग होंगी, और अगर दोनों ट्रांजैक्शन सेम डेटा आइटम पे वर्क कर रही हैं लेकिन दोनों ही रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हैं तो वो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग होंगी। अदरवाइज इन एवरी केस दे विल बी कॉन्फ्लिक्टिंग। बताइए स्टूडेंट समझ आया कि नहीं? Yes, sir. अभी हमने कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी नहीं सीखा है, अभी हमने केवल ये पता करना सीखा है व्हाट आर कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस, व्हाट आर नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. यस सर। अब सीखेंगे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है? कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ कंकरेंट शेड्यूल एस into a serial schedule as dash by interchanging non-conflicting transactions. Clear students? Yes, sir. समझ आ गया सभी को कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी क्या होता है? यस सर। अब इसको एग्जांपल की हेल्प से सीखेंगे। हमसे कहा गया कंसीडर द फॉलोइंग शेड्यूल। हमारे पास दो ट्रांजैक्शन का शेड्यूल दिया हुआ है, एक ट्रांजैक्शन है T1, दूसरी ट्रांजैक्शन है T2। अब हमें यह बताना है ये शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये बताइए, दिस इज अ सीरियल शेड्यूल और दिस इज अ कंकरेंट शेड्यूल। कंकरेंट। कंकरेंट शेड्यूल क्योंकि ट्रांजैक्शंस
इंटरलीव्ड मैनर में एग्जीक्यूट हो रही हैं। पहले 2 ऑपरेशन T1 के एग्जीक्यूट होते हैं, फिर 2 ऑपरेशन T2 के एग्जीक्यूट होते हैं, फिर 2 ऑपरेशन T1 के एग्जीक्यूट होते हैं, फिर 2 ऑपरेशन T2 के एग्जीक्यूट होते हैं। इट मींस ट्रांजैक्शंस T1 एंड T2 आर बीइंग एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली, देयरफॉर दिस इज अ कंकरेंट शेड्यूल। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। अब हमें इस पे सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट करना है। अब हमें ये पता करना है ये कंकरेंट शेड्यूल सीरियलाइजेबल है या नहीं है। क्लियर? तो वो सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। पहला मेथड है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी, दूसरा मेथड है व्यू सीरियलाइजेबिलिटी। सो फार वी डोंट नो व्यू सीरियलाइजेबिलिटी, वी नो ओनली कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। तो हम इस पर कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट करेंगे और कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी टेस्ट करके पता लगाएंगे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है या नहीं है। अगर ये शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल आता है तो ये डेटाबेस को किस स्टेट में प्लेस करेगा? कंसिस्टेंट स्टेट में। लेकिन अगर ये कंकरेंट शेड्यूल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं आता है तो ये डेटाबेस को किस स्टेट में प्लेस करेगा? इनकंसिस्टेंट स्टेट में। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ आ गया? यस सर। तो कन्वर्ट कीजिएगा इसको कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में। क्लियर? समझ आ गया? अब कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी के अकॉर्डिंग हाउ वी कैन कन्वर्ट आर कंकरेंट शेड्यूल इनटू सीरियल शेड्यूल। अब इस कंकरेंट शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट करना है यूजिंग कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एल्गोरिथम। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एल्गोरिथम कहता है पहले आप दोनों ट्रांजैक्शन की नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शंस निकालिए। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। तो इसको करके देखते हैं, एग्जांपल में आपको करके दिखाता हूं। इसके लिए नोटपैड स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सर। हमने नोटपैड स्टार्ट किया, इसको शेयर किया, साइड में यहीं पे रख लेते हैं क्योंकि यहीं से हमें समझ आएगा। देखिए पहली ट्रांजैक्शन है हमारी T1। T1 का पहला ऑपरेशन है रीड ए। T1 का दूसरा ऑपरेशन है राइट ए। उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन है T2। T2 का पहला ऑपरेशन है रीड ए। T2 का दूसरा ऑपरेशन है राइट ए। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हमने देखा T1 का फर्स्ट ऑपरेशन है रीड। क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। T1 के फर्स्ट ऑपरेशन रीड के कंकरेंट T2 का कोई दूसरा ऑपरेशन नहीं है। क्लियर? बताइए ये बात समझ आई कि नहीं? हेलो? नो सर। नहीं समझ आई, समझ लीजिए। ये जो हमारा शेड्यूल है, ये वाला जो शेड्यूल है स्टूडेंट्स, दिस वन, देखिए ये वाला जो शेड्यूल है, जो आप पीछे आपको आपकी स्क्रीन पे केवल नोटपैड आ रहा है या ये भी आ रहा है पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन? केवल नोटपैड ही नोटपैड आ रहा है। ओके ओके। यस सर। दोनों चीजें आनी चाहिए तभी आपको समझ आएगा, इसलिए मैं आपके साथ दोनों चीजें शेयर करता हूं। ओके सर। अब बताइए दोनों चीजें आ रही हैं? यस सर। यस सर। पीछे आप देख रहे हैं हमारे पास पावर पॉइंट में जो हमारा ट्रांजैक्शंस का कंकरेंट शेड्यूल है वो आ रहा है, और नोटपैड में जो हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं वो आ रहा है। क्लियर? यस सर। यस सर। अब ये वाला जो हमारा शेड्यूल है ये कंकरेंट शेड्यूल है। इसे अगर हम सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट कर पाए तो ये शेड्यूल हमारा सीरियलाइजेबल कहलाएगा, अदरवाइज ये शेड्यूल हमारा सीरियलाइजेबल नहीं कहलाएगा। तो हमें इस कंकरेंट शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट करना है।
इस कंकरेंट शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो मेथड आता है वो मेथड आता है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में हम क्या करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी में हम ट्रांजैक्शन T1 की II ट्रांजैक्शन को देखेंगे और ट्रांजैक्शन T2 की IJ ट्रांजैक्शन को देखेंगे। तो II और IJ का मतलब है वो दोनों ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए, कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। क्लियर? अगर ट्रांजैक्शन T1 की फर्स्ट इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं तो ट्रांजैक्शन T2 की सेकंड इंस्ट्रक्शन देखेंगे। अगर ट्रांजैक्शन T1 की सेकंड इंस्ट्रक्शन देख रहे हैं तो ट्रांजैक्शन T2 की थर्ड इंस्ट्रक्शन देखेंगे। क्लियर स्टूडेंट? समझ आ रही है बात? दोनों क्या होनी चाहिए, कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। कंसेक्यूटिव का मतलब है जो उसके बाद एग्जीक्यूट हो रही है। अब आप देखें, सबसे पहले T1 की रीड ए ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। यस सर। अगर इस रीड ए के बाद T2 की कोई दूसरी ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती तो ये दोनों कंसेक्यूटिव कहलाती। फिर हम उन दोनों को देखते कि वो कॉन्फ्लिक्टिंग है कि नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है। अगर वो कॉन्फ्लिक्टिंग होती तो हम उन्हें इंटरचेंज नहीं कर पाते, अगर वो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग होती तो हम उन्हें इंटरचेंज कर पाते। लेकिन हमने देखा ट्रांजैक्शन T1 की जो रीड ए इंस्ट्रक्शन है इसके कंसेक्यूटिव T2 की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, क्योंकि इसके बाद T1 की दूसरी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है। बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, sir. लेकिन T1 की इस इंस्ट्रक्शन के बाद T1 की ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन कहलाएंगी कंसेक्यूटिव। राइट ए ऑफ T1 एंड रीड ए ऑफ T2 आर कंसेक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस। बताइए यहां तक समझ आया कि नहीं? Yes, sir. अब हमें इन दोनों को ये देखना है कि ये कॉन्फ्लिक्टिंग है या नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है। अगर ये नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है तो हम इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं, अगर ये कॉन्फ्लिक्टिंग है तो हम इन दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर? दिखाता हूं मैं आपको Yes, sir. ड्रॉ करके दिखाता हूं, तब ज्यादा क्लियर होगा। अब हम बात कर रहे हैं इस ट्रांजैक्शन की और हम बात कर रहे हैं इस इंस्ट्रक्शन की और इस इंस्ट्रक्शन की। ये दोनों कॉन्सेक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस हैं, तो हम इन दोनों को इंटरचेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। अब सोचने के लिए हमें देखना पड़ेगा ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है कि नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है। अगर ये दोनों नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है तो हम इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं, अगर नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है तो हम इन्हें इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। बताइए ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है कि नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग? सर कॉन्फ्लिक्टिंग। कॉन्फ्लिक्टिंग, क्योंकि दोनों सेम डेटा आइटम पे वर्क कर रही हैं और एक राइट है और एक रीड है, तो इसका मतलब ये कॉन्फ्लिक्टिंग है। इसका मतलब है हम इन दोनों को इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं। नहीं। बताइए स्टूडेंट यहां तक समझ आया कि नहीं? Yes, sir. अब उसके बाद एग्जीक्यूट होगी हमारी ये वाली इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब हमें इसके कंसेक्यूटिव इंस्ट्रक्शन देखना है। इसके बाद एग्जीक्यूट होगी ये वाली, तो इसको भी लिख लेते हैं। राइट ए के बाद फिर T1 की इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, रीड भी, फिर इसकी राइट भी। अब देखिए ये वाली इंस्ट्रक्शन और ये वाली इंस्ट्रक्शन कंसेक्यूटिव है कि नहीं है? Consecutive है. कंसेक्यूटिव है। यस सर। अब हमें देखना है ये कॉन्फ्लिक्टिंग है कि नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है? Non-conflicting. नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग, क्योंकि दोनों डिफरेंट डेटा आइटम पे वर्क कर रही हैं, यस सर। तो हम इन्हें इंटरचेंज कर सकते हैं। Yes, sir. तो इंटरचेंज कर दें। इंटरचेंज करने का मतलब है इसकी जगह ये आ जाए, इसकी जगह ये आ जाए, तो इसका मतलब है रीड भी यहां आ गया और राइट है यहां आ गया। बताइए स्टूडेंट्स, बताइए समझ आया कि नहीं? यस सर। स्वैप हो गई? यस। क्लियर? यस सर। अब इन दोनों को देखिएगा, ये वाली और ये वाली कंसेक्यूटिव है कि नहीं है? यस सर। है। अब देखेंगे नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है कि नहीं है? Non-conflicting. नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है, दोनों डिफरेंट डेटा आइटम पे वर्क कर रही हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इन दोनों को Yes, स्वैप sir. करा सकते हैं, तो Yes, इन दोनों को sir. स्वैप करा लें।
क्लियर? Yes, sir. अब ये वाली और ये वाली कॉन्जिक्यूटिव है या नहीं है? Yes, sir. हाँ। Consecutive. है। दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है कि नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है? Sir, non-conflict. Non- नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है क्योंकि दोनों डिफरेंट डिफरेंट डेटा आइटम पे वर्क कर रही हैं, तो हम इनको इंटरचेंज करा सकते हैं, स्वैप करा सकते हैं। Yes, sir. स्वैप करा लें। क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. अब Yes, sir. ये वाली और ये वाली कंसेक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस हैं कि नहीं है? Yes, है sir. कंसेक्यूटिव। अब देखेंगे कॉन्फ्लिक्टिंग है कि नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है? Non-conflicting. नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है तो इंटरचेंज करा सकते हैं, स्वैप करा सकते हैं, तो स्वैप करा लें। Yes. क्लियर? अब इसकी बाकी बची हुई इंस्ट्रक्शंस लिख लें। बाकी बची हुई रह गई थी ना अभी, वो हमने नहीं लिखी थी, अब ये लिख लें। तो आप देख रहे हैं ये जो हमारा कंकरेंट शेड्यूल था, इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सीरियल शेड्यूल। देखिए Yes, sir. पहले T1 की सारी इंस्ट्रक्शंस Yes, sir. एग्जीक्यूट हो रही हैं, उसके बाद T2 की सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही हैं। Yes. This is conflict serializability, and because this concurrent schedule has been converted into serial schedule using conflict serializability, therefore this schedule is conflict serializable, therefore this schedule passes serializability test. This means this schedule will not place the database in inconsistent state. This schedule will always place the database in consistent state. This is conflict serializability. बताइए स्टूडेंट, समझ आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमारी कहलाती है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या तो सीरियलाइजेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, या कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, या व्यू सीरियलाइजेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, या तो डायरेक्ट पूछ लेते हैं सीरियलाइजेबिलिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है, या इस तरह से आपको कोई प्रॉब्लम दे देंगे, कोई शेड्यूल दे देंगे जो कि कंकरेंट शेड्यूल होगा, फिर आपसे